After doing the sign conventions of lenses, the next concept that we need to reinforce in case of lenses is the concept of magnification. We have already done this concept for mirrors. Magnification is defined as the ratio of height of image to the height of the object. It is also equated as magnification is equal to the ratio of image distance to the object distance. If you talk about mirrors, in mirrors, magnification is minus v upon u. लेकिन lenses में magnification में ये minus sign नहीं होता. We take it as only v upon u. So remember this difference. When we talk about combining these two formulas, so we get another formula in which you can equate the two. hi upon ho is equals to v upon u. ये सारे concepts आप apply करेंगे when we do the numericals. Now, these three concepts of magnification have to be understood very carefully. ये तीनों concepts mirrors पर और lenses पर similar तरीके से लगते हैं. This comes under the category of HOTS questions. Sometimes in the exam, you are only given the value of magnification और फिर वहाँ से आपको 5 mark के questions तक पहुँचा देते हैं. I will tell you how. Clear? Now whenever you look at any value of magnification, say for example, अगर आपको एक वैल्यू दी जाए m इज इक्वल्स टू +1 और इस वैल्यू को देखकर सिंपली इतनी सी इंफॉर्मेशन देकर दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क. नाउ व्हेनेवर यू लुक एट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू में एक साइन होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. साइन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव ऑलवेज मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट वर्चुअल इमेज. पॉजिटिव साइन देखते ही आपको कंक्लूड करना है कि इमेज वर्चुअल है. मैग्निफिकेशन का साइन अगर -1 ये साइन नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल. रियल इमेज नेगेटिव साइन, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव साइन. तो साइन के तो यही दो मीनिंग्स होते हैं बस. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कांस्टेंट फिगर 1, अब इस फिगर का क्या मीनिंग है इसके लिए आपको फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी. इफ़ आई से m इज इक्वल्स टू 1, दिस मीन्स 1 इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho. आपने m की वैल्यू 1 रख दी. इफ़ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट इम्प्लाइज ho इज इक्वल्स टू hi. सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज 1, दिस मीन्स height of the object and height of the image is equal. Whether the image is virtual or the image is real, ये तो साइन से पता चलेगा. So +1 means hi is equals to ho and the image is virtual. -1 means hi is equals to ho but this time the image is real. This is the meaning of m plus or minus 1. Now what does m greater than 1 mean? Suppose m की वैल्यू हमें दे दी गई +3. Now what does this plus tell you? The plus says that the image is virtual. And what will this number 3 tell you? आप फिर बिल्कुल इसकी तरह फॉर्मूले में m की वैल्यू 3 रख दीजिए. m is equals to hi upon ho. So 3 is equals to hi upon ho. Now cross multiplying you will get hi is equals to 3 into ho. Now what does this mean? इसका क्या मीनिंग है? That height of the image is 3 times more than the height of the object. That means image object से 3 times ज़्यादा बड़ी है. That is how you talk about the figures which are given in the questions. Now if I say m is lesser than 1, suppose you are given m is equals to -1/2. 1/2 is lesser than 1. What does this minus sign tell you? It tells you that the image is real. 1/2. अब सिमिलर तरीके से हम m की वैल्यू फॉर्मूले में 1/2 रख देंगे. So if I put the value of m as 1/2 and I write 1/2 is equal to hi upon ho, on cross multiplying I'll get ho is equals to 2 into hi. What does that mean? इसको देखकर क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से 2 टाइम्स ज़्यादा है. In other words, hi is equals to ho upon 2. मतलब
हाइट ऑफ द इमेज इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है. दैट इज द मीनिंग. सो वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट, यू हैव टू ऑलवेज यूज दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट. प्लस अब हम इसी वैल्यू को देखकर मिरर्स तक भी पहुंच जाते हैं. कैसे? लेट अस टॉक अबाउट दिस. पॉजिटिव साइन ने आपको ये बताया कि इमेज वर्चुअल है. वर्चुअल इमेज मतलब वर्चुअल इमेजेस दोनों लेंसेज और दोनों मिरर्स बनाते हैं. रादर तीनों मिरर्स बनाते हैं. प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है. फाइन. अब उनमें से ये कौन सा मिरर है वो आपको ये साइज देखकर पता चलेगा. HI/HO. दैट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही इमेज की साइज़ है. सेम साइज़ की वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर. कॉनकेव मिरर तो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा. कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा. सो हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से मिरर की बात हो रही है. सिमिलरली लेंसेज में बोथ द लेंसेज मेक वर्चुअल इमेजेस, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी. लेकिन कॉनकेव लेंस बनाता है डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज. सो बाय लुकिंग एट दिस वैल्यू ऑफ m, आप सिर्फ वर्चुअल रियल या HI/HO की रेशो नहीं बता सकते हैं. आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है, या ये कौन सा मिरर है, और या ये कौन सा रे डायग्राम की बात हो रही है. सो जस्ट बाय गिविंग m is equals to a simple value, you can be asked a question for 5 marks. Type of image, size of image, type of the mirror or lens, then which case are you talking about, and then they will ask you to draw the ray diagram. So 5 mark का question magnification concept से. So this concept should be worked out under the category of HOTS questions, and you should be able to use this formula in this method. Thank you.